गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 3 ऑफ द बुक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. This is part 1 of the video and before we start, we are trying to finish the syllabus as soon as possible. Please bear with us and please support us, okay? We thank you for all your support. It is only because of you people that we are, able to bring out such new content. And if you have any problem, do write it us or do write it in the comment section, okay? So without any further ado, let's start with the chapter. Now, introduction. How do you understand democracy? A very simple understanding. Democracy is a government of the people, by the people, and for the people. All right? Democracies fall in two basic categories. Now, what are those categories? Firstly, in a direct democracy. Direct democracy में क्या है? All citizens without the intermediary of elected or appointed officials can participate in making public decisions. मतलब जो भी पब्लिक डिसीजंस बनाने हैं उसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है. मतलब आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली पब्लिक डिसीजन जो डायरेक्टली डिसीजंस बना रही है पब्लिक, ओके. और ये कहाँ पे पॉसिबल है? इट इज़ ओनली प्रैक्टिकल विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन या ट्राइबल काउंसिल, या जैसे कि पहले सिटी स्टेट्स में होता था, स्मॉल सिटी स्टेट्स में, ओके. नाउ आर्स इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, इन विच सिटीजन्स इलेक्ट ऑफिशियल्स टू मेक पोलिटिकल डिसीजंस, फॉर्मुलेट लॉज एंड एडमिनिस्टर प्रोग्राम्स फॉर पब्लिक गुड. अब यहाँ पे क्या है कि सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स को जो कि फर्दर पॉलिटिकल डिसीजंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं. ये रेपिटेटिव लाइन है, forget about it, okay. Every citizen has the important right to vote and people elect their representatives to all levels. जैसे पंचायत में भी इलेक्शन होती है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स में भी होती है, स्टेट असेंबलीज में भी होती है, पार्लियामेंट में भी होती है. So you have to understand what is the difference between direct democracy and representative democracy. One is without any intermediary. Public directly makes decisions, okay, and elects people. Representative is where you elect an official who further makes political decisions या laws बनाते हैं वो लोग या administer करते हैं. Understanding? So this is the difference between two basic categories of democracy. Let's understand these two concepts now. Participatory democracy का concept और decentralized governance का. Participatory democracy is a system of democracy in which members of a group or community participate collectively in taking of major decisions. मतलब जो participatory democracy है वो क्या करेगी? इसमें क्या होगा कि जो भी members हैं जिन्होंने decision लेना है, जो भी citizens हैं, they will participate collectively. Okay, and we are striving for it. We are a participatory democracy. And एक है decentralized government करके concept. Now what is decentralized? Let's understand सबसे पहले. Let's understand this as a circle. And what is centralized mean? जो power है वो concentrated इधर है कि few होगी. Only few members have the power. That is centralized tendency. Decentralized is that this power is distributed, okay, among people. जैसे different levels पे distribute की जा रही है, that is decentralization. तो decentralization और grassroots democracy की जो हमारी example है वो क्या है? It is PRI, पंचायती राज, okay. So this is the decentralized example, decentralized and grassroots democracy का example in India and which is going very well, okay. So let's move further. The Indian Constitution. Let's understand. See the core values of Indian democracy. सबसे पहले social change in modern India is not just about Indian and Western ideas. अभी पिछले 2 चैप्टर्स में हमने ये चीज़ समझी कि सोशल चेंज और कल्चरल चेंज जो है ये खाली इंडियन आइडियाज़ या खाली वेस्टर्न आइडियाज़ का नहीं है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन एज वेल एज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन आइडियाज़, दोनों का, ओके. सो डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू इट. इसमें भी दोनों की कॉम्बिनेशन है और इंटरप्रिटेशन है, राइट. सो इन colonial India, the undemocratic and discriminatory administrative practice of British colonialism, it contrasted sharply with the vision of freedom which Western theories of democracy espoused and which the Western educated Indians read about. Let's understand. अब देखिए ये जो डिफरेंस है ये कैसे है. फर्स्टली जिसके अंडर हम थे,
जो हमें एडमिनिस्टर कर रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छी नहीं थी, वी ऑल नो, वी वर पावर्टी स्ट्रिकन फॉर गॉड सेक, ठीक है, वो अच्छी नहीं थी। लेकिन जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो किसके कारण थे? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के कारण, ओके। जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो कैसी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे जो वेस्टर्न नेशंस की डेमोक्रेसी है, उनकी डेमोक्रेसी और जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ओके। तो यू रियलाइज़ कि जो हम में जो वैल्यूज़ हैं दे आर अगेन अ कॉम्बिनेशन एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ साइड्स, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड। as far back as in 1928, जो मोतीलाल नेहरू हैं, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में निकली थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1931 में कराची सेशन ऑफ INC, जो कि बहुत फेमस सेशन है। अब इस सेशन में क्या बात हुई? इसमें हुई कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, ओके। Karachi resolution reflects a vision of democracy that meant not just formal holding of elections but a substantive reworking of the Indian social structure in order to have a genuine democratic society. Let's understand कि जो कराची रेजोल्यूशन था उसमें क्या हुआ, विजन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई, बट ये विजन खाली फॉर्मेलिटी से एक नहीं थी। मतलब डेमोक्रेसी डिड नॉट जस्ट मीन होल्डिंग इलेक्शंस, इट मेंट सब्सटेंटिव रीवर्किंग, एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। Karachi resolution clearly spells out the vision of democracy that the nationalist movement in India had, ठीक है। और यही चीज़ें जो हैं बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो विजन था उस टाइम पे डेमोक्रेसी का, उसको ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेट्स मूव फर्दर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अभी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? वी ऑल नो इट वॉज फॉर्मुलेटेड, ठीक है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के चलते। द कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज्ड फ्रॉम द इंटेंस एंड ओपन डिस्कशंस जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई। Thus, its vision and ideological content, as well as the process of procedure, was very democratic. अभी some people consider it to be very undemocratic क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं की गई थी इनके लिए, ओके, इनके मेंबर्स के लिए। बट यू हैव टू रियलाइज दैट you don't have to use modern lens to judge the happenings of about 60 years back. तो उस टाइम को जज करने के लिए उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। यू हैव टू रियलाइज़ कि जितना डेमोक्रेटिक उस टाइम पे हो सकता था उतना इन्होंने कोशिश किया है। हमने डिमांड 1931 में की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 1939 में की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, एंड हमें वो डिमांड कब पूरी हुई है हमारी? 1945 में। 1946 में क्या हुआ? इलेक्शंस हेल्ड हुई और अगस्त 1946 में INC की एक्सपर्ट कमेटी उसने एक रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया और इसमें क्या था? डिक्लेरेशन दैट इंडिया शैल बी अ रिपब्लिक that where the declared social, economic and political justice will be guaranteed to all the people of India. You have to realize कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया ना उसके साथ हम सबको राइट्स मिली हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिला है। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारे नेशन में विमेन को अलग से फाइट नहीं करना पड़ा है अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, जैसे कि हर वेस्टर्न नेशन में हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? तो उस टाइम पे ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेके। नाउ वील टॉक अबाउट कंपीटिंग इंटरेस्ट्स। कंपीटिंग इंटरेस्ट क्या है? बिकॉज वी आर अ मल्टी रिलीजियस नेशन, वी आर अ मल्टी कल्चरल नेशन, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। वी आर अ प्लूरल नेशन, हम में सब कुछ है, ठीक है। तो जो कल्चर, रिलीजन या कास्ट जो इम्पैक्ट किसी भी चीज़ पे लाते हैं, चाहे अर्बन रूरल डिवाइड हो या रिच पुअर डिवाइड हो या लिटरेट इलिटरेट डिवाइड हो, वो डिफरेंट है। हर एक चीज़ का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा। और कास्ट एंड पावर्टी तो वी आर स्ट्रैटिफाइड बाय इट। तो ग्रुपिंग्स एंड सब ग्रुपिंग्स रूरल पुअर में भी है। जो अर्बन वर्किंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा है। फिर वेल ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक बिजनेस क्लास भी है, प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास भी है। जो अर्बन प्रोफेशनल क्लास है वो हाईली वोकल है, दे हैव द पावर टू से, ठीक है, और वो जगह भी है, उनके पास वो स्पेस भी है बोलने की। सो कंपीटिंग इंटरेस्ट्स मीन कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट्स हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, एंड दे आर कंपीटिंग। बिकॉज अगर देखो ना रिसोर्सेज सेम रहेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड ये सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं, एवरीबडी नीड्स देम ओनली, नो। तो आपको जो इंटरेस्ट है यू विल हैव टू कम्पीट, तो कंपीटिंग इंटरेस्ट होंगे डिफरेंट सेक्शंस के, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड। कंपीटिंग इंटरेस्ट्स
operate on the Indian social scene and clamor for control for states' resources. मैंने आपको बोला resources कम हैं. Okay, understand. Less resources means more fight, more competing interests. There are some basic objectives जो constitution में laid हैं. Empowerment of the poor and marginalized, poverty alleviation, ending of caste and positive steps to treat all groups equally. तो हमारा मोटे मोटे तौर पे इस चीज़ पे हम लोग बेस्ड हैं तब के. Competing interests do not always reflect a clear class divide. अभी देखो, might be मेरा इंटरेस्ट कुछ और है और आपका इंटरेस्ट कुछ और है, एंड वी वॉन्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों में क्लास डिवाइड है या कास्ट डिवाइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अंडरस्टैंडिंग. तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हम दोनों में डिवाइड है, इट इज़ जस्ट दैट हम लोग दोनों वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन आवर ओन इंटरेस्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, सो let's move further and understand constitutional norms and social justice, interpretation and social justice. Okay, interpretation to social justice, aid social justice. Now difference between law and justice क्या है? law का essence है force. नहीं मानोगे तो जेल हो जाएगी. Remember, you can be punished. law नहीं मानोगे. law is law because it carries the means to coerce and force obedience. The power of state is behind it. Just आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें, आपको पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज़ अ लॉ दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. यू कैन नॉट मर्डर पीपल. दैट इज़ अ लॉ कैन नॉट बी ब्रोकन. बिकॉज अगर तोड़ा जाएगा, what will happen? You'll be punished because the power of the state is behind it. What is justice? Justice is fairness. इसमें वो force obedience वाला है नहीं कॉन्सेप्ट. ठीक है. Any system of laws functions through hierarchy of authorities. We all know. अब वो authority कोई भी authority हो सकती है, तो obviously अगर काम करना है तो authority तो होगी. The basic norm from which all other rules and authorities flow, वो कहाँ से है? Constitution से. And who has given this constitution? We the people have given this constitution to ourselves. Okay? Now it is a document that constitutes a nation's tenets, जो हमारे salient features हैं. मान लो, the Indian Constitution is India's basic norm. All other laws are made as per the procedures mentioned in the Constitution. ठीक है. These laws are made and implemented by authorities specified by the Constitution. अब ये authorities क्या हैं? जैसे hierarchy of courts है, जो interpret करता है law जहाँ भी dispute हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोई डूज एंड डोंट्स का नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है. इट इज़ अ मीन्स टू चैनलाइज एंड सिविलाइज पॉलिटिकल पाथ थ्रू सोशल वेलफेयर. ये हर एक चीज़ को देखता है और टाइम के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशंस चेंज भी हुई हैं. वी ऑल नो दैट एंड वी हैव बीन थ्रू दैट. ओके, सो लॉ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी के थ्रू चलता है एंड ये सब अथॉरिटीज़ कहाँ से आ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Okay, so this is it for today's video. I hope you understood it. If you haven't, maybe you should try the second time, and if you still don't, write to us. Okay, and please make sure you revise a lot. We are trying our best to finish the series as soon as possible. Thank you. Stay safe, stay home, and do study hard.